Hello guys, today we are going to know about the defects. So first of all, you are watching this racket in my hand, and here you can watch in this row that this is the crystal in very orderly arranged here also, but in between there is wire which is going to defect. It means it is not equal, while this portion is equal and this portion is equal. Okay, so today we will discuss about the imperfection or defects or shortcomings in the crystal forms. First of all, I would like to tell you that any type of crystal which is found with the help of atom, molecules and ions. So today we will discuss about the imperfection in solid ionic crystal. What is imperfection in the solid ionic crystal? Solid ionic crystal में imperfection क्या होते हैं? तो any deviation from completely ordered arranged of constituent particles is called imperfection. यानी किसी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल में अगर किसी प्रकार कोई कमी दिखती है तो वो आपकी डिफेक्ट कहलाती है या डिसऑर्डर कहलाती है. How many types of defects? There are two types of defects. One is point defects and another is line defects. This one, the defects which arise due to the irregularity from ideal arrangement of the atoms around a point and atom in a crystalline substance are called point or atomic defects. Atomic defects means it occurs in atoms only. But in case of line defects, the defects which arise due to the deviation from ideal arrangement entirely row of लैटिस पॉइंट. ये लैटिस पॉइंट में पूर्ण रूप से किसी प्रकार के रो में किस प्रकार कोई कमी आती है तो वो लाइन डिफेक्ट्स कहलाती है. एज यू आर वाचिंग इन दिस वे. So first of all we have to discuss about the point defects in solid. It is also called non-metal defects. Non-metal defects is two types. One is vacancy or thermodynamic defects or density decrease defects. Means if you are going to heat, then its lattice may get imperfections. So it is called thermodynamic defects. While we are discussing about the vacancy defects, as you, so this is the line. Point defects, here this point and this is this point. So when some of the lattice site, this is the lattice site, when this lattice site is vacant or unoccupied sites in lattice crystal are called vacancies. Here there are no any type of molecules or atoms present. So this is vacant site and we know this is also vacant site. So there is no any presence of atoms or molecules. It is called vacant defects. While in second form of the point defects, we are going to discuss about the interstitial defects. This is the total crystal form, and here you are watching that this reddish type of ball-like structure, which is constituent part of the crystal, it comes in between four molecules or four atoms and occupy the center position. So this is called interstitial defects. Let us start point defects in ionic system. Ionic means a plus or a
minus. So we are further divided into the three part. A, stoichiometric defects, in which this type of crystal form means cation is equal to anion, यानी धन आयन जो है वो ऋणायन के बराबर है, धन आयन जो है वो ऋणायन के बराबर है. And non-stoichiometric defects, here ratio is not confirmed. It is two types: metal excess defects and this is metal deficiency defects. And it occurs mostly in transition metals, lanthanide and actinoids. But this is called inner transition metals. Here impurity defects, introduction of the foreign instruments. Now we are heading towards the stoichiometric defects. Here Schottky defects and Frenkel defects. There are two defects which is known as stoichiometric defects. This is the real ideal crystal. Here you see A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, A, B, A, B. Here this cation is surrounded of 4 negative atoms, and this anion is further covered by 4 cation. 1, 2, 3, 4. फिर से देखेंगे 1, 2, 3, 4. This is the ideal crystal. If any type of defects occur here, then this is known as two types, Schottky and defects. Here you are watching the vacancy occurs. So this is Schottky defects, and it has the high coordinate number. Ions cation और anion उनका साइज और सेम लगभग होगा, और यहाँ डेंसिटी जो है लोअर होगी, क्योंकि इसमें स्पेस में कोई भी एनायन है नहीं. Schottky डिफेक्ट हो गया. यहाँ AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें Schottky डिफेक्ट और Frenkel डिफेक्ट्स पाए जाते हैं. नाउ लो कोऑर्डिनेट नंबर. In case of Frenkel defects, here cationic vacancy occurs, and this cation moves from here to here, interstitial site, यानी बिल्कुल 4 मॉलिक्यूल्स के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ जाता है, तो इसको कहते हैं interstitial sites. This occurs in low coordinate number. Anion is greater than cation and electrical neutral, because if GCl है तो you can take it 3 plus and 3 AgCl3 होना चाहिए. AgBr plus minus AgI plus minus ZnS plus plus 1 minus. So in this way we have discussed about the stoichiometric defects, and this is mainly to the Schottky defects and Frenkel defects. Here metal excess defects and metal deficiency defects we will discuss in the next point. Students, we are just discussing about the Schottky defects and Frenkel defects. पहले मैं आपको ये बताऊं कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है कि A प्लस एंड B माइनस. आप जानते हैं जिसपे प्लस चार्ज होता है वो कैटायन कहलाता है, जिसपे माइनस होता है वो एनायन कहलाता है. ये ध्यान रखिएगा. ये मेटल है और जो भी जितने भी कैटायन होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जितने भी एनायन होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. तो ये देखिए आइडियल क्रिस्टल A B फिर A B फिर A फिर यहाँ पे B A B A B. अब इस प्रकार जो है आप इसको समझिए कि ये आइडियल क्रिस्टल है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वैकेंसी नहीं है. देखिए B माइनस A फिर B माइनस A फिर B माइनस A प्लस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस. इस प्रकार ये आइडियल क्रिस्टल है. इस प्रकार ये संरचना है आइडियल क्रिस्टल की कोई किसी भी चीज की है. जैसे क्लास में मान लीजिए कि एक ही ड्रेस में है सब लोग, तो वो आइडियल क्रिस्टल है. अगर कोई बिना ड्रेस के आ गया तो नॉन आइडियल क्रिस्टल हो गया, उसी को डिफेक्ट कहते हैं. तो ये जो आइडियल क्रिस्टल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, Schottky डिफेक्ट्स और Frenkel डिफेक्ट्स. Schottky डिफेक्ट्स में क्या होता है कि इसमें हाई कोऑर्डिनेट नंबर होता है, ठीक है. दूसरा सेट जो आयन होते हैं वो कैटायन और एनायन होते हैं, इसमें लगभग सेम साइज के होते हैं,
और इसमें डेंसिटी लोअर हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ बी माइनस ए प्लस यानी यहाँ कैटायन गायब हो जाता है। यहाँ भी आपका क्या है, वैकेंसी जो है खाली है। तो आप इस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पोजीशन है वो वैकेंसी की वजह से है। और इसमें AgBr हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि Ag जो है मेटल है और Br जो है वो नॉन मेटल है। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकट डिफेक्ट्स को भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट्स को भी। अब आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स को। तो फ्रैंकल डिफेक्ट ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा कि जिसमें जो है प्लस और माइनस चार्ज बराबर होते हैं। तो इस फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें। दूसरा इसमें एनाइन जो होता है वो कैटायन से बड़ा होता है, यानी एनाइन बड़ा होता है, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज और कैटायन जो है वो पॉजिटिव चार्ज। और इसमें जो है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैटायन खाली हुआ तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए वो कहीं जाता नहीं है, वो इसी क्रिस्टल में रहता है, पूरे क्रिस्टल में। ये देखिए यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ये कैटायन यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पे देखते क्या है कि यहाँ पर गायब हो जाता है, प्लस और माइनस दोनों के केस में। अब आते हैं जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक है। सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक में मैंने बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब होता है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन, यानी जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पर सॉलिड डिफेक्ट्स के जो डिफेक्ट्स के दूसरा सिस्टम जिसको हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। यहाँ देखिए वैनेडियम ऑक्साइड है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो रेंज है वो 0.6 से 1.3 है, यानी वैरी कर रही है। यहाँ आप देखिए फेरिक ऑक्साइड में यहाँ पे जो FeO है उसकी उसकी जो मतलब ऑक्सीजन से रेशियो बैलेंस नहीं है। और इस केस में देखिए जिंक ऑक्साइड के केस में यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो मोर देन 1 है। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यानी बैलेंस होना चाहिए। प्लस और माइनस में किसी कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें जितना प्लस होगा उतना ही निगेटिव होगा। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं क्योंकि ये डिफेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, हम कमियों को देख रहे हैं कि क्रिस्टल किस प्रकार की कमी होती है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात कमी है, इसीलिए हम इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कैटायन इज नॉट इक्वल टू द एनायन, ये और इसी को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस नॉन मेटल्स इज नॉट इक्वल, इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स एंड इट हैपेंस इन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में हम बता लें, दिस इज कॉल्ड आल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स showing variable oxidation number. Along with lanthanoids and actinoids also show this type of defects. Now, अगर मेटल ज्यादा हो जाए किसी, जैसे मान लीजिए क्रिस्टल है, ध्यान रखिएगा पहले क्रिस्टल ये देखिए, ये क्रिस्टल है, ये देखिए ये एक यूनिट सेल हो गई, ये एक यूनिट सेल हो गई, फिर यहाँ से एक यूनिट सेल हो गई, फिर यहाँ से एक यूनिट सेल हो गई, ऐसे यूनिट सेल है। और यूनिट सेल एक रेंज मतलब एक ऑर्डर में लगी है, तो ये जो है आपका आइडियल क्रिस्टल ये हो गया। लेकिन इसमें देखिए किसी प्रकार की जो कमी है, इधर भी कमी को शो कर रहा है और इधर भी कमी को शो कर रहा है, लेकिन ये आइडियल क्रिस्टल दोनों में के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्या होता है, एनायनिक वैकेंसी है। एनायनिक का मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है वो गायब हो जाए। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और देखिए यहाँ पर Cl गायब हो गया है, और वो जब गायब हुआ तो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग इंटैक्ट इन द एनायनिक वैकेंसी। दिस इज एनायनिक वैकेंसी एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज F center or Farbrengen center. It is also known as the colored center and it is also known as the missing anionic site. So you can define F center. It is very important for the exam point of view. This is known as found in the NaCl, KCl and NiCl. NaCl में क्या होता है, येलो कलर हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से गायब हो जाते हैं, यानी एक एनायन की कमी हो जाती है। तो नॉर्मल ये NaCl नमक की बात है, नमक आप देखते हैं कि सफेद है, उसका क्रिस्टल फॉर्म जो है व्हाइट है। लेकिन अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है, मतलब अर्थात ये एसडी डिफेक्ट, इसको शॉर्टकट डिफेक्ट भी कहते हैं, और
और इसमें एनायन की कमी हो जाती है तो वो कलर जो है उस पे सोडियम धात ज्यादा हो जाती है और क्लोरीन जो है कम हो जाती है तो वो येलो कलर का दिखाई। इससे मैं KCl और LiCl इनका कलर आपके सामने है। अब मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट्स की दूसरी पोजीशन क्या होती है, इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक का 2+, ये कैटायन है और ये एनायन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सभी साइड्स फुल है, लेकिन यहाँ पर बाहर से एक्स्ट्रा जो है जिंक जब जुड़ जाता है, तो जब जिंक आ जाता है, दिस इज एक्सेस मेटल जिंक, तो दिस इज जिंक आयन। आप देख रहे हैं दिस बियरिंग 2+, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नेगेटिव, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। यानी क्यों होता है, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो इसमें न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल होना चाहिए कोई भी क्रिस्टल। अब ये इसको फ्रैंकल डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर? तो वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ you must know one thing that this is the non-schematics. It is 2 types metal oxide defects. We have learned it, and now we will discuss about the metal deficiency defect. यहाँ पर हमने मेटल ज्यादा है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल जब कमी हो जाती है तो उसके वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। Students, we briefly know about that when cation is not equal to the anion in any crystal, it is known as the non-stoichiometric defects, and we have discussed about the F-center and cation due to the excess cation in exterior sites. We have discussed it in earlier. Now we are going to discuss about the second part of this non-stoichiometric defects, which is known as मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स। अभी तक हमने मेटल ऑक्साइड डिफेक्ट्स के पढ़े ए और बी, अब हम यहाँ पर सी और डी जो कि मेटल डिफिशिएंसी यानी मेटल की कमी की वजह से जो डिफेक्ट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पी टाइप सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि कैटायन का लॉस हो जाता है, और दूसरा सेकंड में क्या होता है कि ये कैटायन जो इंटरस्टिशियल साइट में हो जाता है। लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, metal deficiency due to the cationic loss. Here you are watching that there is no presence of any cation. cation means होता है धनायन। यहाँ पे देखिए धन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस गायब होगा, प्लस आयन गायब हो गया, यानी कैटायन गायब हो गया। और ये सब जो है होता है FeO में, यानी फेरस ऑक्साइड के केस में फेरस जो फेरिक में चेंज हो जाता है, फेरिक में फेरस में चेंज हो जाता है। और इसी वजह से वो कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कंडक्टिविटी बनी रहती है, और जाहिर सी बात चमक ज्यादा होती है। इसको फ्यूज गोल्ड यानी बहुत चमकदार सोना जैसे लगता है। और इसी प्रकार निकल ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, यहाँ देखिए ये जो रेड कलर से है ये कैटायनिक है और ये बाकी जो है एनायनिक है। सर इसमें आते हैं डी वाले में, इसका होता क्या है इसमें, ये जो डिफिशिएंसी है, ये जो डिफेक्ट्स है या जो डिसऑर्डर है इन क्रिस्टल जालक में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी चारों तरफ ये जो स्पेस होता है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस साइड कहते हैं, क्योंकि A+ B- A+, यानी जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, अंतरा आकाशीय स्थान हिंदी में। Now we are going to take the example that in case of anionic, when here you are watching that it is BS 1:2 charge, A+, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+, B-, A डबल प्लस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट इसमें है आसपास के जो है ये जो है ये कैटायन जो है इस कैटायन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर A+ जो है वो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर 2+ में चेंज हो जा रहा है, और रीजन है इसीलिए इसके ऊपर हायर चार्जेस होते हैं। एंड एनायन इज इंटैप्ट इन द इंटरस्टिशियल साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एनायन जो होता है वो अंतरा आकाशीय स्थान में
हो जाता है। इसमें कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती रहती है, लेकिन बहुत ही लो। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। असमानुपातिक के जो कमियां हैं उसका ये तीसरा पोर्शन है। इसमें आप देखिए NaCl का एक क्रिस्टल दिया गया है, जो नमक आप खाते हैं उसका। Na केटायन हमेशा छोटे स्मॉलर होता है और एनायन हमेशा बड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो NaCl NaCl यहाँ पे देखिए सब Cl NaCl Na, यानी सब में Na और Cl का ही, अब जितने Na होंगे उतने ही Cl हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसको स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये Sr++, इसको 2 प्लस है, ये 2 Na सोडियम आयन के बराबर है। अभी देखते हैं इसका क्या कमाल है। NaCl यहाँ SrCl2 को जब इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, मान लीजिए नमक है मोल्टन फॉर्म में, और मोल्टन फॉर्म में SrCl2 उसमें मेंटेन कराते हैं, तो वो येलो कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए NaCl NaCl Cl और यहाँ पे देखिए SrCl2 है। यहाँ पे देखिए इस जगह पर क्या था, आपका Na+ था, लेकिन Na+ रिप्लेस हो गया Sr2+ से, 2+ है। तो यहाँ पर एक और इसने देखिए इस जगह पे Na+ है और इस जगह पर आपका Na+ होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि 2 चार्जेस है इस पर, इसलिए इसको भी वैकेंट रखना पड़ेगा। और ये जो वैकेंसी है इसकी वजह से हमें जो है इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स का। और दूसरी चीज है कि हमें इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी भी बना सकनी है, तो जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तभी ये कोई भी क्रिस्टल बैलेंस होगा। तो फॉर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी यू हैव टू ज्वाइन इक्वल नंबर ऑफ द कैटायन विद एनायन। यहाँ देखिए दिस इज द मेन थिंग, Sr2+ वो चेंज कर रहा है Na+ को एक यहाँ से और एक Na+ को यहाँ पे, तो प्लस ये और प्लस ये, 2+ रिप्लेस बाय Sr2+। Thank you. And students, believe me, if you are going to focus on my videos, you forget totally about the coaching classes.